एजुकेशन करके दिखाई दे। Namaste and welcome to the next Vocabulary Booster series. First of all, thank you all so much for the terrific love, affection and support that our Vocab Booster series has received from you. We regularly receive your messages and communication, and thank you so much. And here's the next lesson in our series. Make sure that PT's Vocabulary Booster, which carries vocabulary for competitive exams and practice questions, करके दिखाएंगे. You visit the site daily. Make sure of that because there would be a lot of useful content on our boosters website, boosters.pteducation.com. लगातार कॉन्फिडेंस बूस्टर और क्वांट्स बूस्टर बनते जा रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, देखते चलिएगा. And make sure that you write a beautiful testimonial for us on the testimonial form so that इसकी लिंक यहीं दी है testimonial writing की, ये फॉर्म खुल जाएगा so that your name and picture can figure prominently on the PT Stars page. ये रहे हमारे PT Stars. अनिरुद्ध जैन from जयपुर, प्रशांत सिंह गाजियाबाद, विनोद कुमार मथुरा, चिरंजीवी बिस्वाल संबलपुर, मोहित शर्मा from दिल्ली, रोहित जोशी from कोल्हापुर, पूजा सुधीश केरल, नमस्ते जी नमस्ते, Mohit Sharma from Delhi, Manthan Sehgal from Delhi, Krishna Gupta from Kanpur, and all these beautiful, beautiful people. Thank you so much, ladies and gentlemen, for all the love and support you have shown. And please accept our respectful namaste for all this love. Let's begin the work for today. We are going to learn words with techniques that will make them stick forever in your mind. पूरा सेशन हमेशा PT Booster साइट पर है. And the good news is that online quizzes are also available. तो आप आराम से रियल टाइम में क्विजेस देके खुद चेक कर सकते हैं आपका परफॉर्मेंस क्या है और आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये क्विजेस दे सकते हैं. तो ये पूरी क्विज लाइब्रेरी आपके लिए PT Boosters पर है. Those of you who face vocabulary or who think vocabulary is a huge challenge, आपके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन है हमारा vocab डेवलपमेंट कोर्स. दिस इज अ कोर्स ऑफ 50 सेशंस विच आई हैव डेवलप्ड. ये पूरे 50 सेशन मैंने लिए हैं और आप ऑनलाइन गुरुकुल PT एजुकेशन के लिंक पर जाकर एनरोल करके अगले 1 मिनट में पढ़ना शुरू कर सकते हैं. हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर बेनिफिटिंग. ये पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन है. डू थिंक अबाउट इट and take a look at it for sure. Let's begin the work with an assignment. अब आपको पहला असाइनमेंट दे रहा हूं vocabulary का. You may only succeed if you desire succeeding. You may only fail if you do not mind failing. I want you to give a quick analysis, 2, 3, 4, 5 statements or sentences in the comment thread below on this beautiful food for thought. तो ये बेहद विचारोत्तेजक और प्रेरणास्पद वचन पर आपका विश्लेषण. सर बहुत भारी हिंदी हो गई सर. सॉरी. भारी इंग्लिश बोलो तो सैल्यूट मारते हो, भारी हिंदी बोलो तो मजाक उड़ाते हो. बैड बॉय. यू मे ओनली सक्सीड इफ यू डिजायर सक्सीडिंग. यू मे ओनली फेल इफ यू डू नॉट माइंड फेलिंग. आई वुड वेट फॉर योर एनालिसिस and if you can use some good words, not too heavy though, it would be better. Okay, so let's begin our work for Vocabulary Booster for today. Our session today is based on the theme of OUS adjectives. Adjectives that carry OUS have a certain magical ring around them, and the English language is full of such words. कुछ samples तो आपके सामने हैं, लेकिन हम आपके लिए 9 अलग ही शब्द लाए. बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, बस वही पढ़ना है आपको. अरे सर ये बैकग्राउंड में तो कुछ दिख ही नहीं रहा सर, कैसे पढ़ेंगे सर? घबराओ मत बेटा, अभी उसको फोरग्राउंड में भी लाएंगे. सो द ग्रेट एडजेक्टिव्स विद OUS, एज आई सेड, इंग्लिश इज जैम पैक्ड विद देम. उनमें से 9 बड़े पावरफुल हम आपके लिए छांट कर ले आए हैं. ये रहे 9 ग्रेट एडजेक्टिव्स विद OUS. अब ये 9 के 9 आप लिख लो मीनिंग के साथ, और फिर इंडेप इसमें छलांग मार के तैर के निकलेंगे स्पेसिफिक ओशन से. बिबुलस, कैडावरस, डोलोरस, impecunious, innocuous, obsequious, obstreperous, querulous,
supercilious. ये 9 बड़े खूबसूरत विशेषण, 9 beautiful adjectives from the English language, which if you understand thoroughly, you will be able to perhaps use them at some place. But remember the KISS principle always. KISSS. मैंने हमेशा इसी पे जोर दिया है, आज फिर दूंगा, क्योंकि otherwise it becomes an outwardly extravagant show of erudition which should be avoided. अब ये खुद ही इतना डिस्प्ले हो गया erudition का इस सेंटेंस में, तो आप हमें किस का फुल फॉर्म KISSS का कमेंट थ्रेड में बताइए. Bibulous, one who loves to drink too much or love to drink too much. Cadaverous, very thin and emaciated due to certain circumstances. Dolorous, sorrowful, दुख से भरा. Impecunious, not having enough money, बहुत ही बुरी हालत में. Innocuous, harmless and innocent. Obsequious, fawning and servile. Obstreperous, unmanageable and intractable. Querulous, complaining and nitpicking. Supercilious, snobbish. ये हैं 9 बेहद खूबसूरत शब्द. सबसे पहले तो ये समरी ऐसी की ऐसी फटाफट लिख लो. आई एम श्योर यू वुड हैव नोटेड डाउन. याद रखिएगा, अपनी आंखों से देखना, कानों से सुनना और आनंद लेना, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान ने तो हाथ दिए भैया लिखने के लिए. दोनों हाथों से मत लिखना, एक ही हाथ जिससे लिखते हो उसी से लिखना. महात्मा गांधी नहीं हो आप. तो मेक श्योर दैट यू राइट फ्रॉम 1 to 9 ये बेसिक समरी, और इनको याद रखिएगा. बट देन बेसिक समरी से हमारा काम आज तक कहां हुआ है. हम तो भाई अब छलांग लगाएंगे. वी स्टार्ट आवर डिटेल स्टडी ऑफ द 9 ग्रेट वर्ड. स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, बिबुलस. वर्ड को 9-9, 10-10 बार बोलिएगा, लिखिएगा, तभी प्रोनाउंसिएशन याद होगा, तभी स्पेलिंग याद होगी. बेसिक एग्जाम्स में कुछ जो एंट्री लेवल के और मीडियम लेवल की एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, वहां पे स्पेलिंग्स भी पूछ लेते हैं. तो जब तक आपने 8-10 बार लिखी नहीं है, 8-10 बार पढ़ी नहीं है, 8-10 बार बोला नहीं है, यू विल नेवर रिमेंबर थिंग्स. इंग्लिश के साथ यही प्रॉब्लम है, किसी भी भाषा के साथ. तो याद रखिएगा, बोलिए, लिखिए, सुनिए, पढ़िए. A combination of that will make it stick for the rest of your life in your mind. Bibulus, love to drink too much. The bibulous Boris Yeltsin created some embarrassing scenes in diplomatic meetings. बोरिस येल्त्सिन कौन थे? 1991 के बाद सोवियत यूनियन fragmented or it totally went to dogs, and Boris Yeltsin came to power. And from 91 to 2000, he was the president, 1-2 साल आगे पीछे होगा, president of Russia, the modern democratic Russia. और उसके बाद पुतिन साहब आ गए. तो बोरिस येल्त्सिन को शराब पीने का भारी शौक, उसकी वजह से बहुत खराब हालत कई बार हो जाती थी. Synonyms for the word bibulous. क्या आपको बोरिस येल्त्सिन और मॉडर्न रशिया के बारे में कुछ और पता है? प्लूटोक्रेटिक शब्द बहुत यूज होता है. क्यों होता है बताइएगा रशिया के कंटेक्स्ट में प्लूटोक्रेटिक? इनेब्रिएटेड, बहुत ही बढ़िया शब्द, कठिन शब्द, अच्छा शब्द, यानी पूरी तरह से नशे में धुत. ड्रंकन, बूजी, एल्कोहलिक, ये सारे एक समान हैं. एब्जॉर्बेंट इज अ डिफरेंट वर्ड, लेकिन उसका अर्थ बिबुलस के कंटेक्स्ट में है वन दैट एब्जॉर्ब्स द फ्लूइड्स अ लॉट. एब्जॉर्बेंट यानी अवशोषी. अदरवाइज तो शराबी है. हमने हिंदी शब्द वहीं दे दिए हैं. हम सभी ने अपने अपने घरों में बच्चों को इसके साथ खेलते देखा है. बिबुलस वाटर बीड्स. अब इन वाटर बीड्स को कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि भाई ये वाटर बीड्स एल्कोहलिक वाटर बीड्स हैं, पर बिबुलस बोल सकते हैं, बिकॉज बिबुलस का एक और अर्थ है एब्जॉर्बेंट. तो ये बीड्स सूखे रहते हैं, पानी डाल दीजिए तो ये बड़े हो जाते हैं, पानी गायब हो जाता है. हाँ, एल्कोहल डालेंगे तो भी शायद यही असर आएगा. ऑल्दो इट विल इवेपोरेट. दैट वाज जस्ट अ जोक, डोंट ट्राई. बहुत मार पड़ेगी मम्मी से. एंटोनिम इज सोबर. सोबर इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉट बीइंग ड्रंक. तो a teetotaler will always be sober. Give me the spelling of teetotaler in the comment thread and make a good sentence with teetotaler. Second, cadaverous. ये बड़ा नेगेटिव वर्ड है. वर्ड्स के टोन्स होते हैं. आपको टोन्स पता होने चाहिए. प्रैक्टिस कर करके पता चल जाते हैं, रीडिंग कर करके पता चल जाते हैं. वेरी थिन एंड इमैशिएटेड, मुर्दे जैसा दुबला पतला या शववत. The cadaverous soldiers were no match for the well-fed and rested enemy contingent. समझ गए? तो दो पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं सेनाएं. एक बिल्कुल दुबली पतली मरियल है क्योंकि कई हफ्तों से खाना ही नहीं मिला ढंग से, और दूसरी जो है उसकी नींद भी पूरी हो चुकी है और उसको खाना पीना भी अच्छा मिला है. हाँ, ज्यादा मोटे ना होगा, नहीं तो चल ही नहीं पाएंगे. तो cadaverous is a negative word which indicates a very desperate situation. Skeletal, skeleton नहीं है भैया, ध्यान रखना. skeleton will be a noun. This is skeletal, which is the adjective for skeleton. बहुत बारीक फर्क है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो एक आपको होमवर्क दूं, होमवर्क जो कमेंट थ्रेड में पूरा हो जाएगा. मेक अ सेंटेंस कनेक्टिंग skeleton and skeletal.
समझ गए? एक ही सेंटेंस में दोनों यूज करो, इमैशिएटेड, और ऐसा सेंटेंस मत बनाया माई सर टॉट मी 2 न्यू वर्ड्स टुडे, स्केलेटन एंड स्केलेटल। बेटा ये टीवी स्क्रीन से निकल कर तुम्हारा कान पकड़ूंगा। इमैशिएटेड ये इतना नेगेटिव नहीं है, ये हो सकता है कि भाई किसी ने व्रत रखा हो 30 दिन का तो वो इमैशिएटेड हो गया हो। तो बताइए किस तरह के लोग विशेष तौर पर 30 दिन का व्रत रखते हैं? गॉन, बोनी, कोप्स लाइक, ये नेगेटिव है, यानी शववत, मुर्दे जैसा। एंटोनिम चबी यानी मोटा, कॉपुलेंट बहुत अधिक मोटा, और ये नॉर्मली कैपिटलिज्म के कंटेक्स्ट में भी आता है। आई होप यू हैव एंजॉयड द वर्ड कैडावरस। तो हमने बिबुलस के लिए इमेज देखी थी, याद आ रही है? कैडावरस ज्यूज इन द नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। ऐसी स्थितियां जर्मन नाजीज के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में यहूदियों की कर दी गई थी। तो यदि आपको होलोकॉस्ट के बारे में पता है, मैंने होलोकॉस्ट पढ़ाया है वो कैब बूस्टर के एक पिछले लेसन में, तो हमें बताइएगा कैडावरस ज्यूज इन द नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में हमने क्या बताया था? व्हाट डू यू नो अबाउट इट? एक या दो सेंटेंस में पता हो तो जरूर बताइएगा। डोलोरस। वी कम टू द थर्ड पावरफुल OUS वर्ड फॉर टुडे, डोलोरस। फुल ऑफ सॉरो, बेहद दुखी, उदास, निराश, खिन्न। The tales of a Holocaust survivor will be nothing but a string of dolorous experiences. आपने एक डायरीज के बारे में सुना है? किसी ने तो अभी तो डायरीज लिखी थी। क्या नाम था उस महिला का जिसने डायरीज लिखी थी? क्या आपने हॉलीवुड की मूवी शिंडलर्स लिस्ट के बारे में सुना है? कौन थे उसके डायरेक्टर? द मेगा ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर। Synonym for dolorous, melancholy. Melancholy as an adjective, melancholy is also a noun. याद रखना, बड़ा अजीब शब्द है। Desolate, desolate, lugubrious, आंखों से पानी निकल रहा है। Dolorous, melancholy, desolate, lugubrious, ये नए वर्ड्स हैं, 8-8, 10-10 बार बोलो, लिखो, तब जाके भैया याद होंगे, अदरवाइज तो फिर ये वर्ड्स हैं हवा में लटके हुए उड़ जाएंगे। Antonym, joyous, ecstatic, joyous, खुशी से भरा हुआ, ecstatic, अत्यधिक खुश। मम्मी मम्मी मैंने यूपीएससी प्रीलिम 2017 की एग्जाम निकाल ली। मम्मी मम्मी, इस साल 2017 की जिसने यूपीएससी की एग्जाम निकाली उसको तो वाकई एक्सटेटिक होने का हक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जिन्होंने एग्जाम दी उनसे पूछना, वो बता देंगे। बाय द वे, यूपीएससी 2017 पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश एंड हिंदी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। उसकी लिंक भी हमने यहां दी है, आप देख लीजिए, और जाके जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए वो बहुत अच्छा रिसोर्स होगा। सो इज डोलोरस क्लियर? तो डोलोरस की भी इमेज देख ली जाए। एक बड़ा अच्छा वाक्य मिला है। There lived a singer in France of old by the tideless dolorous midland sea. In a land of sand and rain and gold, there shone one woman and none but she. डोलोरस का यूज देखा है आपने? बाय द टाइडलेस डोलोरस मिडलैंड सी। अब अगर एक ऐसा समुद्र है जहां पे ज्वार भाटा आता ही नहीं है, टाइड यानी कि ज्वार और भाटा क्यों आता है भाई? चंद्रमा कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, कुछ समय के लिए दुखी हो जाता है, तो कभी पानी को खींच लेता है, कभी पानी को छोड़ देता है। बचपन में हमें कहानियां सुनाई जाती थी ना, बड़ा अच्छा बचपन था। बचपन में कितनी अच्छी अच्छी कहानियां थी। आजकल तो कहानियों का समय नहीं है, मोबाइल पे सारी कहानियां, लोग हंसते हैं। चंदा मामा? क्या चंदा मामा? यहाँ पर यू कैन सी द सैटेलाइट लैंडिंग ऑन द मून, सो व्हाट चंदा मामा नॉनसेंस, चंदा मामा। अरे वो सारी खूबसूरती खत्म कर दी रे मोबाइल फोन्स ने। इफ यू अग्री से ये। डोलोरस क्लियर हो गया भैया? आगे चलते हैं। इम्पिक्यूनियस, चंदा मामा। नॉट हैविंग इनफ मनी, इम्पिक्यूनियस यानी निर्बल, दरिद्र, अभागा, ये तीनों उसके कॉनोटेशंस हो सकते हैं। द इम्पिक्यूनियस सिटीजन्स ऑफ नॉर्थ कोरिया हैव टू स्ट्रगल हार्ड फॉर फूड एंड एमिनिटीज। अब उत्तर कोरिया एक तरफ तो अमेरिका को बोलता मैं तुझे उड़ा दूंगा, और एक तरफ वहां के नागरिकों की आप हालत देख लीजिए। नागरिकों के पास, ये एक टिपिकल पिक्चर है, बड़ी स्टीरियोटिपिकल पिक्चर है, मैं मानता हूं, बट the citizens of North Korea, most of them who live in the countryside, often have to forage for food. तो उनके वहां खाना ही नहीं है, और न्यूक्लियर मिसाइल बनाए जा रहे हैं, और अमेरिका को बोल रहे हैं तुझे उड़ा देंगे। सो दुनिया में कॉन्ट्रडिक्शंस की कमी नहीं है। इम्पिक्यूनियस समझ में आया? इंडिजेंट, बेहद गरीब। इंसॉल्वेंट, अभी पैसा चुकाने में असमर्थ। पेन्यूरियस, बहुत दरिद्र। स्ट्रैप, जिसके पास आज किसी भी तरह के एसेट्स ही नहीं है। तो ये बड़े अच्छे शब्द हैं, इम्पिक्यूनियस, इंडिजेंट, इंसॉल्वेंट, पेन्यूरियस, स्ट्रैप। लिख लीजिएगा, बोलिएगा, सेंटेंस बनाइए। आप सेंटेंस बना सकते हैं तो अभी कमेंट थ्रेड में बना दीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। एंटोनिम,
plutocrat, one who is super duper rich, the rich amongst the rich, affluent. The root for affluent आपको पता ही है, अंग्रेजी भाषा में रूट्स होते हैं, इटाइमोलॉजिकल स्टडी होती है, इनके मूल शब्द होते हैं, कोई लैटिन से निकला है, कोई ग्रीक से निकला है, कोई रोमन किसी पुरानी भाषा से निकला है, कोई सेल्टिक से निकला है, कोई यिडिश से निकला है, कोई फ्रेंच है, कोई जर्मन है, और वो सब आके अंग्रेजी में समाहित हो गए। मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, हिंदी है, संस्कृत है, ये सारे वर्ड्स गए वहां पे। मोंगूज हो गया मराठी शब्द, वंदना हो गया बंगाली शब्द, पंडित, मंत्र, गुरु संस्कृत और हिंदी शब्द, ये सब चले गए अंग्रेजी में। अंग्रेजी ने सबका स्वागत किया, आ जाओ भाई आ जाओ। एफ्लुएंट का रूट है फ्लू विच मीन्स फ्लो। फिफ्थ, इनॉक्वस, बहुत ही प्यारा शब्द है। जिस प्रकार इम्पेक्यूनियस एक नेगेटिव फीलिंग देता है, इनॉक्वस एक पॉजिटिव फीलिंग देता है। हार्मलेस एंड इनोसेंट, आइए आपको दिखाएं हार्मलेस एंड इनोसेंट। और नीचे वाला बोल रहा है Who me? Come close, I'll tell you who is innocuous. कौन सी प्रजाति के ये श्वान महोदय हैं, जरा बताएंगे। सर क्या बोला क्या बोला? श्वान सर, श्वान क्या होता है सर? श्वान SCHWAN? अरे श्वान हिंदी में कुत्ते को कहते हैं, अच्छा शब्द है कुत्ते के लिए, श्वान। तो ये जो श्वान नीचे वाला दिख रहा है, यानी कुत्ता जो दिख रहा है, इसकी प्रजाति, अच्छा प्रजाति नहीं पता है, स्पीसीज। व्हाट स्पीसीज ऑफ डॉग्स इज दिस? सर डॉग तो अपने आप में ही एक स्पीसीज है। हाँ, गुड, इंटेलिजेंट। तो व्हाट ब्रीड ऑफ डॉग इज दिस? इतना ही बता दो भैया मुझे। इनॉक्वस तो कहीं से, ऊपर वाले तो बड़े पेडली क्यूटी इनॉक्वस हैं। समझ में आ गया ना? देखिए क्या क्या करना पड़ता अंग्रेजी पढ़ाने के लिए यार। Harmless and innocent. The innocuous Trump turned merciless when it came to climate change negotiation. All of you will agree with me. Why did I say all of you will agree? If you know, let me know. If you know, let me know. Synonym: non-injurious, non-dangerous, even bland. Bland का मतलब होता है किसी भी प्रकार की शार्पनेस नहीं लिए हुए। एंटोनिम: लीथल, हार्मफुल, जो बिल्कुल जान ले भैया आपकी। निरुपद्रवी, क्योंकि उपद्रवी यानी जो उपद्रव करे, तो निरुपद्रवी जो उपद्रव न करे और जो भोला भाला हो। जैसे आप प्यारे प्यारे बच्चे, भोले भाले क्यूट क्यूट बच्चे, सब पता है मुझे, सब पता है कितने भोले भाले हो। ऑब्सिक्वस, फॉनिंग एंड सर्वाइल, यानी बेहद चापलूस, बिल्कुल गिर पड़ रहा है अगले की चापलूसी करने में। द obsequious Central Asian nations got dollops of investment from the Chinese communists. है ना बढ़िया सेंटेंस? चीनी पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से ये जो बड़े चापलूस मध्य एशियाई देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन्हें तो भारी मात्रा में निवेश मिला, ऐसा कई मीडिया में कहा। ये लोग तो नेचुरली मना ही करेंगे। बाय द वे, डू यू नो दैट द स्थान इन ऑल दीज नेशंस कम्स फ्रॉम संस्कृत स्थान, just like Zen Buddhism comes originally from Sanskrit, ध्यान। Synonym: submissive, psychophantic, बहुत अच्छा शब्द है, इसमें पी नहीं आता है भैया, वो साइकोपैथिक होता है। ये साइकोफेंटिक यानी चापलूस। अंक्चुअस, एक और बहुत प्यारा शब्द साइकोफेंटिक का सिनोनिम। एंटोनिम यानी विलोम शब्द: डोमिनेटिंग, सुपरसीलियस। सुपरसीलियस शायद आज आ ही जाए। तो ये ऑब्सिक्वस के लिए बहुत अच्छा अर्थ, वाक्य, पर्यायवाची और विलोम सारे आपको बता दिए हमने। तो आपसे अब एक सरल सवाल मैं नहीं पूछूंगा, गेस हु इज ऑब्सिक्वस। ऐसे सवाल तो पूछे ही नहीं जा सकते, क्वेश्चंस दैट नीड नो आंसर। हा 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 हा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेट ऑफ 3 वर्ड्स टुडे। डिड यू एंजॉय द सेशन और नॉट? अभी बहुत कुछ बचा, अभी क्विज आ रही है बेटा, और वही क्विज फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल है आपके लिए बूस्टर्स साइट पे। obstreperous, अनमैनेजेबल एंड इंट्रैक्टेबल, ऐसा व्यक्ति जिसका प्रबंधन ना हो सके। द नक्सलाइट्स आर नॉट ओनली obstreperous, दे आर वायलेंट एंड डेंजरस एज वेल। तो ये रहे नक्सली। अब कोई भी आगे बढ़ के इनके साथ बातचीत तो निश्चित ही नहीं करना चाहेगा। सो दीज नक्सलाइट्स आर नॉट ओनली obstreperous but violent and dangerous as well. Synonym: prickly, touchy, choleric, स्प्लेनेटिक। ये वर्ड्स पढ़ते पढ़ते लग रहा है ना यार कुछ गड़बड़ हो रही है, ये सेंस आ जाता है वर्ड्स पढ़ते वक्त। दैट्स कॉल्ड द टोन ऑफ द वर्ड, सारे नेगेटिव। एंटोनिम: प्लेजेंट, ये पढ़ के किसको नेगेटिव लगेगा? प्लेकेबल, ये पढ़ के किसको नेगेटिव लगेगा? एक्सेप्ट सेटन यानी शैतान। नादकार, कोलाहल मचाने वाला, दैट्स obstreperous, जरूरी नहीं कि वो वायलेंट ही हो। क्वेरुलस,
बहुत प्यारा, हमेशा शिकायत करने वाला। आपका कोई ना कोई एक दोस्त तो ऐसा होगा ही जो हर चीज में शिकायत करता है, वो शिकायत में भी शिकायत करता है। ऐसे लोगों को क्वेरुलस कहते हैं। कंप्लेनिंग एंड निटपिकिंग, बाल की खाल। द क्वेरुलस मिनिस्टर गॉट द शॉर्ट श्रिफ्ट इन द कैबिनेट रीशफल। तो शॉर्ट श्रिफ्ट क्या होता है? नो कंसिडरेशन। समझ गया? तो इस प्रकार क्वेरुलस के लिए यह होता है। अब यहां पर क्वेरुलस के लिए एंटोनिम देखिए, एमिएबल और साइलेंट। समझ गए? तो जब हम एमिएबल और साइलेंट की बात करते हैं तो यहां पर डेफिनेटली एमिएबल और साइलेंट के केस में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े शांत होंगे। अब हमने ऑब्स्ट्रेपरस और क्वेरुलस दोनों के लिए सेम सिनोनिम्स दिए हैं, ठीक है? तो ऑब्स्ट्रेपरस में एक दो नए सिनोनिम्स और आपको दे देता हूं। ऑब्स्ट्रेपरस में 2-3 सिनोनिम्स नए क्या हो सकते हैं बताइए? जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है आप बताइए, ऑब्स्ट्रेपरस में और नए सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एक तो डेफिनेटली हो सकता है नॉइजी। तो जो बहुत ज्यादा शोर शराबा करे उसके लिए हम डेफिनेटली ऑब्स्ट्रेपरस यूज कर सकते हैं। यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे भाई कर सकते हैं कि नहीं, आप ही बताइए। यस सर, डेफिनेटली कर सकते हैं। और हमने एक और शब्द आपसे पहले टॉकिंग टाइप्स में बात की थी, वॉसिफरस। याद आ रहा है कि नहीं? वॉसिफरस की बात की थी ना। अब ये जितने वर्ड्स आपको यहां दिख रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये सब नेचर इंडिकेट करते हैं, तो वहां से नॉइजी और वॉसिफरस बन जाता है। सो दिस इज हाउ प्रिकली, टची, choleric and splenetic temperaments will lead to your being noisy and vociferous। तो इस तरह एक ग्रुप ऑफ वर्ड से पूरे दूसरे निकल के आ गए, और हमने आपको लाइव डेमो में क्वेरुलस से कैसे कोई व्यक्ति ऑब्स्ट्रेपरस हो जाएगा आपको बता दिया। इसे आप कृपया करके जरा याद रखिएगा। लाइव डेमो भी करवा दिया भैया आपने। ओके, अब आगे चलते हैं। क्वेरुलस के सिनोनिम्स जो मैंने पहले समझाए थे, जिससे ऑब्स्ट्रेपरस के नॉइजी, वॉसिफरस, क्लैमरस भी हो सकता है, लाउड भी हो सकता है, निकले। प्रिकली, टची, कोलेरिक, स्प्लेनेटिक, विच इज अबाउट टेम्परामेंट। समझ गए? सुपरसीलियस। तो अब क्वेरुलस के लिए हमने इमेज तो देखी नहीं। एक बहुत खूबसूरत कोटेशन, बड़ी दुखद स्थिति पे आज के विश्व की। All successful newspapers are ceaselessly querulous and bellicose. Bellum याद आ रहा है? Warlike. They never defend anyone or anything if they can help it. If the job is forced on them, they tackle it by denouncing someone or something else. H.L. Mencken was horrifyingly, depressingly not entirely wrong. Although the newspapers will naturally say, what nonsense is this Mencken guy saying? And then they will be bellicose and querulous about Mencken. Well said, isn't it? सुपरसीलियस, स्नॉबिश, बहुत ज्यादा अवमानी या दम्भी। जिस तरह क्वेरुलस सर्वदा शिकायत करने वाला, शिकायत में भी शिकायत करने वाला। द सुपरसीलियस साउथ कोरियंस आर नोन टू समटाइम ट्रीट अदर एशियंस विद इंडिग्निटी। तो ऐसी खबरें कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे बताई जो साउथ कोरिया घूम कर आए, कि कभी कभी उन्हें ऐसा सेंस लगा रेस्टोरेंट्स वगैरह में कि वो दूसरी रेसेस के प्रति बहुत अधिक सम्मान नहीं रखते हैं। Does any one of you have such an experience? If yes, do share with us. हो सकता है ऐसा कुछ ना हो सकता है मेरे दोस्तों ने मुझे गलत फीडबैक दे दी, पता तो चले। सो सुपरसीलियस के केस में सिनोनिम वुड बी स्कॉर्नफुल, यानी दूसरों के प्रति बड़ी नीच दृष्टि से देखने वाला, लॉर्डली, खुद को राजा मानने वाला, मॉकिंग, मजाक उड़ाने वाला, helpful, humble, helping. Now, you know, I really can't help but show you a fantastic image which is very contemporary, which the American media has repeatedly used. सुपरसीलियस समझाने के लिए मैं आपको एक ही चित्र दिखाऊंगा भैया, ये रहा। तो अमेरिकन मीडिया ने कहा कि दिस इज अ सुपरसीलियस बॉडी जेस्चर। क्या पता, हो सकता है ट्रम्प साहब बिल्कुल मना कर दें कि नो, आई वॉजंट बीइंग सुपरसीलियस, आई वॉज बीइंग वेरी पेनिट्रेटिंग वर्ड प्ले। सो all the 9 words that we have covered. I hope you have enjoyed, and it's time for me now to move on to the quiz। 9 plus all the synonyms, 60 से ज्यादा शब्द, 9 तो कीवर्ड्स थे, हमने बाकी कवर कर लिए। तो एक बार क्विकली वी विल गो थ्रू दी होल लॉट वंस अगेन। कितने थे भैया? बिबुलस, कैडावरस, डोलोरस, इम्पिक्यूनियस, इनोक्वस, ऑब्सिक्वस, obstreperous, querulous, supercilious, us, 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 us।
ये पूरे 9 आप याद रखिएगा, ये एक पावर लिस्ट हो गई आपके लिए, बहुत काम आएगी। एंड इफ यू on your own start preparing for this in such a manner, you will never forget the words for the rest of your life. I hope it really helped. And just in case you want some solid professional help, ये रहा वो कोर्स जो आपको सारे समाधान देगा। अब एक फटाफट क्विज हल की जाए। रेडी? इसके बिना तो भारत में कुछ हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Question number 1. Tick tock, tick tock. What did not happen? The cadaverous citizen tried to get up to salute the dictator, but since it took some time, he was shot dead by the accompanying policemen. पढ़िए इसको और बताइए क्या हुआ। The cadaverous citizen tried to get up to salute the dictator, but since it took some time, he was shot dead by the accompanying policemen. टिक टॉक सोचो, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सोचो। Now, let us see what really is going on here. अब इसका उत्तर क्या होगा? None of the above. समझाता हूं कैसे। We know cadaverous is one who is very thin, emaciated and almost dead. So if you look at option 3, a weak, frail, hungry citizen got shot. This actually happened. But what was the question? What did not happen? तो 3 तो definitely नहीं हुआ। अब option 1, 2 and 4 देखो। Do we have any way of knowing which of these 3 was correct? Option 1 or option 2 or option 4? No way. So या तो हमें दिया जाता except 3 all, तो हम मार्क करते, बट हमें दिया गया है none of the above. So in this horribly twisted question, which is how good exams में actually frame questions, तो यहाँ vocab के साथ logical reasoning और उसमें भी twist what did not happen, तो none of the above. अब इस क्वेश्चन को चेंज करें 1 मिनट के लिए, इसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं। What happened? क्या आंसर होगा आपका? Of course, answer would be 3. Absolutely right. I hope आपको थोड़ा सा एक एग्जाम का फील आया। क्वेश्चन 2 के लिए रेडी है? What happened? मजा आ रहा है ना भाई? The obstreperous students sat for a discussion with the principal who refused to accept what they wanted. ये तो जवाब देते आना चाहिए यार भाई। The obstreperous students sat for a discussion with the principal who refused to accept what they wanted. मेरे ख्याल से आंसर 1 होगा। आंसर 3 भी हो सकता है। I'm sorry, 3 भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, सही सोच रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो। The correct answer of course is 4th. अरे पढ़ा था ना obstreperous, loud, arrogant, implacable, और फिर मैंने आपको Naxalites का एग्जाम्पल भी दिया था, ऑल्दो वो तो वायलेंट के केस में था, बट स्टिल याद रखने के लिए दिया गया था। Which is the odd one out? इनमें से कौन सा इस ग्रुप का सही हिस्सा नहीं है? Querulous is to placable, dolorous joyous, bibulous intemperate, supercilious helping, cadaverous well built। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसीलिए तो आपको दिया है। क्या लगता है भाई? द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इज बिबुलस इनटेम्परेट। आइए समझा देता हूं। पहला ऑप्शन देखिए, क्वेरुलस प्लेकेबल। क्वेरुलस इज वन हु विल नेवर बी प्लेकेबल। डोलोरस जॉयस, डोलोरस इज वन हु इज नॉट जॉयस, रोता हुआ। सुपरसीलियस इज ऑलवेज पैट्रोनाइजिंग, तो वो हेल्पिंग तो है नहीं ना। कैडावरस बेचारा बहुत ही दुबला पतला हो गया, मरने की कगार पे पहुंच गया, वेल बिल्ट हो नहीं सकता। बट बिबुलस इज डेफिनेटली इनटेम्परेट। इनटेम्परेट यानी एक बार वो शराब पीना शुरू की तो रुक नहीं सकते हैं, इमॉडरेट। हेंस थर्ड एग्जिबिट्स अ डिफरेंट रिलेशन एंड हेंस आंसर इज थर्ड। ध्यान रखिएगा। फोर्थ, इन व्हाट वे इज बीइंग ऑब्सिक्वस डिजायरेबल? ये एक और लॉजिकल प्रश्न आ गया। ऑब्सिक्वस होना किन दशाओं में वाकई में अच्छा माना जा सकता है? अब हमें तो कुछ और ही पढ़ाया गया था, आज ऑब्सिक्वस बड़ा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इसीलिए तो उल्टा क्वेश्चन पूछा है। 1 2 3 4 5, what do you think should be the answer? Of course the answer is third, because this is the only reason for which people become obsequious. It helps you get what you want from others. There actually is no other reason. 1 2 and 4 are definitely wrong, and so 5 is definitely wrong. Spot the odd one out. 5वां क्वेश्चन आपके लिए तैयार है और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। सांस ले लो भैया, सांस रोक के बैठे हो इतनी दूर।
spot the odd one out. Groups of 3 words are given. Find the group which is not similar to the other groups. Tick tock, tick tock, tick tock. घड़ी की सुइयां बिना रुके तेजी से आगे बढ़ रही हैं. अरे सर, जब से पैदा हुए तभी से ऐसा हो रहा है. टाइम ऑलवेज गोज फॉरवर्ड. अरे नहीं भैया, टाइम इज साइक्लिक. ये है ना कॉन्सेप्ट, टाइम इज साइक्लिक. पूरी दुनिया का आपका पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है. अरे अभी तो सर वोकैबुलरी सॉल्व करवाइए प्लीज. हाँ, श्योर श्योर श्योर. द करेक्ट आंसर इज थर्ड, बिबुलस, इमॉडरेट, क्लियर इन हेड. व्हाई? ऑप्शन 1 देखिए, ऑब्सिक्वस, सर्वाइल, फॉनिंग, सिनोनिम्स. ऑप्शन 2 देखिए, ऑब्स्ट्रेपरस, इंट्रैक्टेबल, कंप्लेनिंग, सिनोनिम्स. ऑप्शन 4 देखिए, डोलोरस, मेलांकली, ब्लू, सिनोनिम्स. 5th, सुपरसीलियस, स्नॉबिश, हॉटी, सिनोनिम्स. बट ऑप्शन 3 में बिबुलस, इमॉडरेट तो सिनोनिम्स हैं, क्लियर इन हेड तो होगा नहीं ना. हाँ, कई लोग कहते हैं कि जब तक मैं बहुत पीनी लूं क्लियर इन हेड नहीं होता हूं. तो ऐसे महान लोगों को हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम है भैया. कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता. But for all normal people like you and me, bibulous, immoderate and clear in head, my last word clear in head will definitely be the odd one out or the outlier. That brings us to the conclusion of this session. Remember, इस ब्यूटिफुल सेइंग का आपको हमारे लिए अर्थ ढूंढकर कमेंट में लिखना है. यू मे ओनली सक्सीड इफ यू डिजायर सक्सीडिंग. यू मे ओनली फेल इफ यू डू नॉट माइंड फेलिंग. वी विल अवेट योर प्रेजेंस इन आवर फैंटास्टिक ऑनलाइन कोर्स ऑन वोकैबुलरी डेवलपमेंट. गुरुकुल लिंक पे जाके सारी जानकारी लीजिए. एंड दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन टुडेज वोकैब बूस्टर. आई होप यू हैव एंजॉयड इट लाइक ऑलवेज. दैट्स ऑल फ्रॉम मी. बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी. जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी है, हमारे सारे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस हिंदी और इंग्लिश दोनों में वेब पर तैयार हैं. नमस्ते, जय हिंद.